Welcome to all in Get Plus. Today our topic is characteristic of negative feedback. Means what is the effect of what? Feedback here in terms of sensitivity, disturbance, noise or bandwidth. Okay, first we have discussed about here what? Sensitivity of any parameter. This one is the most important concept for the control system. Then we have to discuss here one by one in detail. First one is, suppose if I want to check here sensitivity of A due to the variation of B. मीन्स क्या हमें चेक करना है? सपोज एक पैरामीटर को चेक करना और सेकंड पैरामीटर को वेरी कराने से इस पे क्या इफेक्ट आता है, इस टाइप को मेजर करने के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? हमेशा सेंसिटिविटी. ठीक है, ओके. जैसे मैं बोलूं कि एक बाइक है, उसमें जो है मैंने एक उसका क्या है पार्ट मैंने निकाल दिया, उसको चेंज करने से या उसको दूसरा रिप्लेस करने से उसके जो है स्पीड या उसके टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके जो है जो भी उसका एवरेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टाइप के एक वजह से सेकंड पे इफेक्ट देखेंगे. उस टाइप में हमेशा किसकी बात करेंगे? सेंसिटिविटी की. मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ ए ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ बी, दैट इज राइट एज percentage change in A upon percentage change in B. And we have already idea about the percentage change in A, that is what? Change in A upon A, that is what? Del A upon A. Percentage change in B, that is del B upon B. And if I simplify here, that is equals to del A upon del B and B upon A here. Okay. Means what is the meaning here? Means sensitivity of A due to the variation of B, just differentiate the A with respect to B here, again multiply with B by A. Okay. Means suppose if I want to find out the sensitivity of closed loop transfer function due to the variation of what? G. Okay. तो जितने पैरामीटर उसमें रहेंगे हमारे सिस्टम में, उसके वजह से हम चेक कर सकते हैं. सपोज इफ आई वांट टू चेक हियर इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इफ आई वांट टू चेक द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ G, only one parameter, that is G here, then you can check only the sensitivity of T due to the variation of G equals to what? Del T upon del G, that is G by T here. Okay. This is the formula to find the sensitivity of T to the variation of G, that is equals to del T by del G and G by T here. Okay. First we have to differentiate the T here with respect to G. Then if I want to differentiate del T upon del G, that is equals to 1 here. And if I put the value of 1 here and what? G upon T. What is the T here? T equals to G. This one is cancelled, means this one is equals to 1. Means sensitivity of T to the variation of G, if I take the magnitude, this one is equals to 1. Means what we can say कि जितना इसमें जो है हमारा क्या होगा, जितना हम चेंज करेंगे G में यहाँ पे इसके ओपन लूप गेन में, उतना ही इसके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज हो जाएगा. सपोज मैं कहूं यहाँ पे if gain open loop gain is suppose 10 here and suppose this one is gain is reduced by 10%, then what is the effect of closed loop transfer function? First, if gain is 10 here, then what is the closed loop transfer function? That is 10. If gain is reduced by 10%, means what is the 10% of 10 here? That is 1. Means if gain is reduced by 10%, that is equals to 1 here. Okay, that is equals to 1. Gain is reduced by 10% means 1. We have to reduce here 1 here, means we have to take 10 minus 1, that is equals to 9 here. Either we can say if gain is reduced by 10%, 10 into 90 upon what? 100. This one is cancelled, that is equals to 9 कर सकते हैं. ठीक है, तो 10% हम रिड्यूस करेंगे तो इसका गेन चेंज होकर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अगेन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस वन इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन T इक्वल्स टू G, अगेन दिस वन इज 9. कहने का मीनिंग क्या एक्चुअली यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? इसका मीनिंग यही आ रहा है कि जितना हम चेंज करेंगे किसमें? G में 10 से कहाँ हुआ? 9 पे हुआ, तो G ये क्लोज लूप ट्रांसफर, सॉरी ये ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ? 10 से 9 हुआ. सपोज G 10 से 8 हुआ तो ये भी कहाँ से हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ठीक है, इसका मीनिंग सिग्निफिकेंस यही है कि सेंसिटिविटी ऑफ T टू द वेरिएशन ऑफ G इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर. मीन्स हाउ मच अमाउंट इज चेंज इनटू द G, that is reflect at the transfer function T here. Okay, clear? जैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, if G equals to what? 100 and gain is reduced by what? 10%, then how much reduce closed loop transfer function T? This one is also reduced by
10% because this one is the directly proportional here. Okay, this is all about your open loop transfer function. Next come to the closed loop transfer function here. Closed loop transfer function, that is the two parameter, that is one is G and second one is H here. Then we can find here closed loop sensitivity of T due to the variation of G, and second we can find here sensitivity of T due to the variation of H. Because there is the two variable here G and H, then first we have to find the sensitivity of T due to the variation of G, and second we can find here sensitivity of T due to the variation of H. Suppose if I want to find out the sensitivity of T to the variation of G, sensitivity of T due to the variation of G, that is equals to del T by del G. This is the formula here, and that is G by T here. Okay. Suppose if I want to differentiate of this one with respect to G, then what we can get, that suppose del T by del G, that is equals to 1 plus GH. Again differentiate G 1 here minus, and this one is G, and if I differentiate here, this one is what, H upon, we can get 1 plus GH square. This one is cancel here, means 1 upon 1 plus GH square, means 1 plus GH whole square. Again G upon, what is the closed loop transfer function, that is G 1 plus GH here. This one is cancel. Then we can write here 1 upon 1 plus GH. This is the sensitivity of closed loop transfer function T due to the variation of G here. Okay. Next, suppose if I want to find out the sensitivity of T due to the variation of H, this is the formula for del T upon del H, and that is H upon T here. Okay. Next we have to find here sensitivity of T due to the variation of H. How we can find? Again we have to differentiate here T with respect to H. If I differentiate here with respect to S, then what we can get? First we have to write here 1 plus GS, again differentiate G with respect to S. This one is treated as constant here. This one is 0 minus, again G, differentiate with respect to S. This one is G. Okay, divide by 1 plus GH square here. This one is what? Minus G square upon 1 plus GH square. Again we can write here H upon what? G 1 plus GH. This one is cancel here, and this one is also cancel. Then what we can write here? This one is, we can write here what? Minus of GH here, minus of GH upon 1 plus GH. Okay. And this one is, suppose if I take the magnitude of sensitivity of T due to variation of H, that is equals to GH upon 1 plus GH. And here GH is suppose much more greater than 1. This one is replaced at GH, and this one is approximated as 1 here. Approximated as 1 means what? मैंने प्रीवियस में अभी क्या डिस्कस किया था ओपन लूप में, उसमें टी जो है जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इसमें चेंज करते थे उतना ही डायरेक्ट इसमें चेंज होता। तो ये भी क्या हो गया, इसमें क्लोज लूप में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, तो बहुत जो है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होने लगेगी, लेस देन 1 होने लगेगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज लेस डिपेंडेंट अपॉन द जी, दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, and directly depends upon the feedback transfer function here. Okay, this one is equals to 1. इसका कहने का मीनिंग क्या है कि इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इस पर लेस डिपेंड होगा, इस पे मोर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और हमेशा जो डिजायरेबल मीनिंग क्या होती है कि सेंसिटिविटी हमेशा मिनिमम चाहिए, सेंसिटिविटी हमेशा क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। अब ऐसे बोलो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं एक लैपटॉप की बात करूँ कहीं भी, जैसे मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ और टेम्परेचर, वहाँ पे जो आईसी जनरेट किए जाते हैं उसका बीटा पैरामीटर सभी क्या होते हैं, हम एनालॉग में इसको डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कई पैरामीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो हर के लिए जो है अलग डिजाइनिंग होता है। सपोज टेम्परेचर यूएस का अलग रहता है हमेशा, उसका टेम्परेचर लेस रहता है तो उसके लिए अलग डिजाइन होगा। सपोज वो वाला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए हर जगह लिखा रहता है कि मेड इन चाइना, यहाँ पे मतलब वहाँ किस कंट्री के लिए यूज हो सकता है, तो हर एक कंट्री के लिए सेपरेट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर सपोज ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इसके जो पैरामीटर है आईसी के जो भी, अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमारे लिए और बेटर होता कि कहीं भी यूज कर सकते थे, ये स्पेसिफिक नहीं हो पाता। ठीक है, बट हम क्या चाहेंगे, हमेशा सेंसिटिविटी क्या चाहेंगे, मिनिमम डिजायरेबल होती है, मैक्सिमम नहीं। ठीक है, हमेशा हर पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कि दिस वन इज लेस डिपेंड अपॉन दी एंड दिस वन इज द मोर डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द एच। इसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा। जैसे मैं बाइक की बात करूं, सपोज हमारे पास क्या है, अपाचे बाइक है।
ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अपाचे बाइक है, ठीक है, अपाचे बाइक है हमारे पास, और मैं उसको अभी लिया, जैसे रिसेंटली लिया, 1 या 2 डेज बिफोर लिया, और मैं देख रहा हूँ 1 वीक बाद जो है उसमें कुछ और एडवांस वर्जन आ गया उसका। क्या आ गया? एडवांस वर्जन आ गया। तो आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे कि जो है क्या हमारे बाइक में जो है उतना कास्ट फिर से पे करना पड़ेगा नई लेने के लिए, या हम चाहेंगे कि कुछ इसका पैरामीटर हम क्या करें, चेंज करके अगेन जो एडवांस वर्जन आया वही हम चाहेंगे। ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो ये हमेशा मैंने इसको क्या बोला था, इसको सिस्टम बोला था या ऑटोमोबाइल व्हीकल। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये 100% तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर पहले से कॉन्सेप्ट है तो नो प्रॉब्लम, बट पहले फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा कि कैसे मैं कोरिलेट किया था GNH को। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इसको सिस्टम बोला था या बाइक बोला था। ठीक है, ये सब पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इस सिस्टम में, सिस्टम को हम बार बार चेंज नहीं करना चाहेंगे। सिस्टम बार बार चेंज करेंगे तो हमारी कास्ट इंक्रीज हो जाएगी। सपोज कोई प्लांट हमने जनरेट किया किसी प्रोडक्ट के लिए, और बार बार हम प्लांट को अलग अलग कई जगह नहीं बना सकते ना, कि इसके लिए यार इसमें प्रॉब्लम हो गया, अब हमें एडवांस वर्जन चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसी का एडवांस वर्जन ला सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो प्लांट को चेंज करना मीन्स कास्ट बहुत हाई हो जाएगी, और कुछ पैरामीटर को चेंज करना हमारी कास्ट मिनिमम होगी और एडवांस वर्जन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इस पे डिपेंडेंट है तो इसकी कास्ट तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होती है। इसको मैं चेंज करके बार बार क्या कर सकता हूँ, एडवांस वर्जन ला सकता हूँ। ठीक है, तो इस पे डिपेंडेंट तो हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल है। बट इस पे लेस डिपेंडेंट है, ये भी हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल। बट इस पे क्या हो जाता, मोर डिपेंडेंट हो जाता तो हमें बार बार प्लांट को चेंज करना पड़ता, और हमारे लिए कास्ट हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। और कास्ट इंक्रीज होगी तो हमारे प्रोडक्ट की कास्ट भी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कास्ट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यूजर लेना चाहेगा हमारा प्रोडक्ट? नहीं लेगा, कभी नहीं ले सकता। वो क्या करेगा, दूसरे प्रोडक्ट को प्रीफर करने लगेगा। इसलिए हमारे कुछ मेन सर्टेन लिमिटेशन होती है, उसी को हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट सेंसिटिविटी ऑफ closed loop and open loop. Okay, next if I want to discuss here, suppose this one is sensitivity of T due to the variation of H is what we are getting here. This one is what, 1 upon 1 plus GS. This one is approximated as 1. And what is the sensitivity of D to the variation of G? That is GH upon 1 plus GH. Sorry, this one is what, 1 upon GH. This is approximated as less than 1. Less than 1 means this one is closure transfer function is less depends upon the G here, and this one is directly depends upon the H here. Okay, तो कभी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कोई पैरामीटर GS इक्वल टू गिवन है K अपन S प्लस 1, एंड पूछ सकता है यहाँ पे इसको क्लोज लूप बना के यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दे देगा। ठीक है, क्लियर। और पूछेगा सेंसिटिविटी ऑफ T टू द वेरिएशन ऑफ K भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका फार्मूला डेल T बाई डेल K एंड K बाई T है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इस पे, बट आइडिया होना चाहिए। लेट अस टेक वन क्वेश्चन हियर। व्हाट इज गिवन हियर? दिस वन इज गिवन, अ सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन C बाई R इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर K. System is operating omega equals to 5 radian per second and K equals to 1. K equals to 1 here. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द C by R, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मैंने डायरेक्ट क्या बताया था C by R फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहले इसका GS मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस वन इज द कैस्केड कनेक्शन, एंड इफ इट इज G1 and G2 देन डायरेक्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। वी कैन राइट हियर व्हाट, GS इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 25K अपॉन S प्लस 5 here. Okay, 25K upon S plus 5, and if I want to write here directly closed loop transfer function, मैं बात कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, 25K upon S स्क्वायर 5S प्लस, इसको अगेन यहाँ पे ऐड कर देते 25K। मैंने बोला था कि इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, तो डायरेक्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक ले लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, बार बार वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। GS अपॉन 1 प्लस GS अच्छा सॉल्व करेंगे, लास्ट में इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे क्या? नहीं, पहले हम नहीं पुट करेंगे, सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे। दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन T,
And if I want to find out the closed loop transfer function t due to the variation of what we have to find here, variation of parameter k, then what we have to find sensitivity of t due to the variation of k, that is equals to del t by del k into k by t. Suppose if I want to differentiate here del t by del k, that is what we can write here, s square 5s plus 25k, and if I differentiate with respect to क्या k 25, again this one is what 25k, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका अपर साइड में लिख दे रहा हूँ 25 के, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 25 हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर 5s प्लस 25k स्क्वायर, एंड दिस वन इज कैंसिल हियर. ओके, this one is cancel. Then what we can write here, s square 5s upon s square 5s plus 25k square into what, k by t. T is what 25k. Again this one is, यहाँ पे जो लिखेंगे इससे स्क्वायर से कैंसिल कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ चुका है s प्लस 5 अपॉन s square 5s plus 25k. Again we can put the value of s equals to j omega, and next we have to put k equals to what, 1 here, and take the magnitude of sensitivity up to the variation of k. This one is the answer. I think answer is 1.41 something. Okay. एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे. A negative feedback system has amplifier gain is what, 10 here, and with 1% of tolerance, 1% of tolerance in forward path. 1% tolerance means either plus और माइनस, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, परसेंट टॉलरेंस. ठीक है, जब एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, सपोज हमें क्या है, ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल देंगे 10, बट इसमें क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू की थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहेंगे तो टॉलरेंस की बात कर लेंगे, कितना ये वेरी कर सकता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें, जैसे कोई भी पैरामीटर रहता है तो उसको हम बोलते हैं इतना हो सकता है, बट इसमें इतना टॉलरेंस हो सकता है प्लस माइनस का, उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे मैं बोलूँ कि इस बाइक का एवरेज इतना है, बट क्या है, इस बाइक एवरेज इतना देती है, मीन्स उसमें टॉलरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं कि वही कांस्टेंट रहेगा हमेशा. ठीक है, टॉलरेंस इन द फॉरवर्ड पाथ एंड अल्टरनेटर ऑफ द वैल्यू, दैट इज 9/10 इन द फॉरवर्ड पाथ. Feedback path, the overall system gain is approximately, means we have to find the overall system gain, means gain t में change हो रहा है, परसेंटेज टॉलरेंस कितना हो रहा है, प्लस माइनस 1%. देन व्हाट इज द इफेक्ट इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हियर. ओके, okay, let us check here how we can find here. First, what is the formula? Suppose if I assuming that but there is no any tolerance here, then what is the closed loop transfer function, that is g upon 1 plus ghhs, and what is the value of g here, that is 10 upon 1 plus 10 into what is the h. H is feedback path is what, alternative value of feedback path is 9/10, that is 9/10, that is equals to 1 here. Okay, means closed loop transfer function is 1 when we are assuming that tolerance is what, 0%. Okay, देन ओवरऑल सिस्टम गेन. सपोज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इसमें, सपोज टॉलरेंस कितना परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, प्लस माइनस 1%, तो ये क्लोज लूप में कितना परसेंटेज चेंज आएगा. इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी ऑफ टी टू द वेरिएशन ऑफ व्हाट, जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यार गेन जी. ठीक है, तो ये कोरिलेट करना पड़ेगा, ऐसा कि नहीं कि बार बार सेंसिटिविटी लिखेगा एग्जाम में. मीन्स फर्स्ट वी हैव टू, दिस वन इज सेंसिटिविटी ऑफ टी टू द वेरिएशन ऑफ जी. वी कैन राइट हियर परसेंटेज change in t and percentage change in g, that is equals to what, and what is the percentage. इसकी वैल्यू क्या आती थी, g के रिस्पेक्ट में करते थे तो 1/1 प्लस जी एच आता था, प्रीवियस में देख चुके हम. ठीक है, 1/1 प्लस जी एच, और h के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या आता था, जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,
and h is 9/10. This one is what cancel here, that is 1/10 here. Okay, this one is 1/10. Okay, suppose if I want to find out the percentage change in t, that is equals to 1/10 into percentage change in g. And what is the percentage change in g? That is what? Plus minus 1%, and that is equals to what? Plus minus 0.1%. This one is the percentage change in t. और हमें क्या आइडिया था? परसेंटेज चेंज इन जी का आइडिया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? परसेंटेज चेंज इन टी कितना हो गया? प्लस माइनस 0.1%. देन व्हाट इज द टी? टी हमारे यहां से कितना था? 1 प्लस माइनस व्हाट? 0.1%. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको. ठीक है, नहीं इसके बाद तुम्हें अपने आप आइडिया लगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी. Okay, first we have to find the, we are assuming that there is no any tolerance, means what? Zero tolerance here. Then closed loop transfer function डायरेक्ट क्या जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था सेंसिटिविटी का? सेंसिटिविटी ऑफ टी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी, परसेंटेज चेंज इन टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन जी, दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आया था 1/1 पर जी एच, प्रीवियस में देखा था मैंने, और इसकी वैल्यू पहले मैंने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 1/10. तो हमें क्या वैल्यू निकालनी? परसेंटेज चेंज इन टी निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. दिस इज 0.1%, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. 1 ऑलरेडी आ चुका था यहाँ से. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन. तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, थोड़ा सा कुछ चीजें और को रिलेट करेंगे. इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन टाइम कांस्टेंट. फर्स्ट वन इज व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट इज व्हाट? दैट इज 1 यूनिवर्सल रिलेशन टू बैंडविड्थ. ओके, मैंने इस टॉपिक को क्यों अभी ले रहा हूं? क्योंकि मैंने टाइम डोमेन एनालिसिस में बैंडविड्थ और टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए फार्मूला बता चुका हूं. व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट. अब ये भी पूछ सकते हो सर, कब सपोज कई सारे रूट होंगे, तो उसका भी मैंने डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट नियरर टू ओरिजिन. और क्यों वो बताया था कि नियरर टू ओरिजिन ही लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया उसको. ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, दैट इज टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, बिकॉज टाइम कांस्टेंट इज वैलिड फॉर ओनली स्टेबल. ठीक है, तो इसका पोल्स कहां पे? s इक्वल्स टू -1. में रूट्स कहां पे? s इक्वल्स टू -1. इस -1 का मॉड लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे 1/-1, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 ईयर. ठीक है, तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना आ गया? 1 आ गया. तो इसका बैंडविड्थ कितना आया है? बैंडविड्थ इज 1/1, दैट इज इक्वल्स टू 1 ईयर. क्लियर? बैंडविड्थ इज सेम ईयर. सपोज थोड़ा मैं और इसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँ s+2 ईयर. देन टाइम कांस्टेंट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, दैट इज -2. तो यहाँ पे पुट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, माइनस इसका मॉड लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और बैंडविड्थ इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, मिस मैं बोलूं 3/s+8, इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ठीक है, बट टाइम कांस्टेंट अगर सपोज यहाँ 1/s-1 होता तो इसका हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करते. ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल की तरफ मूव करने लगता ना. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जो उसकी बात करेंगे. सपोज यहाँ पे बैंडविड्थ क्या आ गया? 2 आ गया. क्लियर? एंड सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट हियर व्हाट? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन is what? This one is closed loop transfer function if it is unity feedback, that is equals to what? 8/s+1 plus numerator upon denominator and plus numerator, that is what? 8/s+9. And what is the bandwidth here? Bandwidth is 9. And what about time constant? That is what? 1/9. 1/9 here. Clear? What is happening here? एक बैंडविड्थ का और फार्मूला पड़ा होगा क्या? 0.35/राइज टाइम. ठीक है, और मैंने फर्स्ट ऑर्डर में ये भी बताया था राइज टाइम इक्वल्स टू 2.2 इंटू टाउ, डायरेक्टली रिलेशन होता है. ठीक है, और सेटलिंग टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 2%, दैट इज 4 टाउ. में से सब को रिलेट होते हैं, तो ऐसे हम निकालेंगे. यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो ये माइंड में होना चाहिए क्या पॉइंट होते हैं इसके लिए. तो मैं डिस्कस करूं. सपोज देखो यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ क्या हुई है? इसकी बैंडविड्थ क्या थी? इसकी बैंडविड्थ थी, सबसे पहले ओपन लूप की बैंडविड्थ क्या थी?
बैंडविड्थ ओपन लूप की क्या थी बोल दो, यहाँ पे बैंडविड्थ 1 थी। जैसे मैंने क्लोज लूप यूज किया इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई 9 हो गई। इसका मीनिंग क्या होगा, बैंडविड्थ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बैंडविड्थ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ओपन लूप टू क्लोज लूप। बट गेन क्या हो जाता है डिक्रीज होता है इन नेगेटिव फीडबैक, गेन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में, गेन क्यों डिक्रीज करें, गेन तो हम चाहते हैं कि हमेशा मैक्सिमम मिले ना, ओपन फायर में क्या करते हैं गेन हमेशा इंक्रीज करते हैं ना, बट हम स्टेबलाइज करने के लिए एक कंडीशन होती है। स्टेबलाइज मैंने बताया था, उसमें बताया था किसमें डिजिटल में बताया था क्या स्टेबलाइज इसका मीनिंग होता है। स्टेबलाइजेशन मीन्स जैसे मुझे 8 डिस्प्ले करना है, ठीक है, ये वाली एलईडी अगर स्टेबल नहीं रहेगी तो क्या हमारा कभी 0 दिखाएगा कभी 8 दिखाएगा। या मैं ऐसे में बोलूँ लेमन लैंग्वेज में, कोई बाइक से मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, 100 किलोमीटर से एबव जा रहा है पर आवर से मूव जा रहा है, तो क्या कोई सामने आ जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ब्रेक नहीं लगा पाएगा, हो सकता है एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होंगे। मिस कहने का मीनिंग क्या है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी या गेन बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा आउटपुट पे कंट्रोल बहुत लेस होगा, और हमेशा हम चाहते क्या है कि हमारा आउटपुट पे कंट्रोल मैक्सिमम हो, कि जैसा प्रोडक्ट चाहें हम वैसा ही हमारा आउटपुट आए। ठीक है, ऐसा ही तो चाहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम चाहेंगे कुछ और चेंज होकर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके मिस हम यहाँ पे गेन को क्या करेंगे डिक्रीज कर, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया बट गेन डिक्रीज हो गया इन निगेटिव फीडबैक। ठीक है, गेन डिक्रीज हो गया और बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया। व्हाट अबाउट टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट पहले क्या था 1 आया था, अगेन क्या आ गया 1 बाय टाइम कांस्टेंट इज डिक्रीज। 100% बैंडविड्थ इंक्रीज होगा, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, राइज टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा और सेटलिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। राइज टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम मीन्स जहां से स्टेडी स्टेट स्टार्ट होता है, मीन्स अ सिस्टम विच इज सेटल डाउन इट्स फाइनल वैल्यू दैट इज डिफाइंड बाय द सेटलिंग टाइम। मीन्स एक क्लोजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा आउटपुट जो है कितना क्लोज हो चुका है हमारे फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइम में कितना टाइम लिया है उसी को रिप्रेजेंट करेगा सेटलिंग टाइम ईयर। ओके, तो यहाँ से मैं कोरिलेट करूँ तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आ गए तुम्हारे। नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज हो जा रहा है और स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होगा यार, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज हो गया तो व्हाट अबाउट राइज टाइम, राइज टाइम इज आल्सो डिक्रीज एंड सेटलिंग टाइम इज आल्सो डिक्रीज हियर। ओके, सेटलिंग टाइम इज डिक्रीज मीन्स व्हाट, राइज टाइम की बात कर रहे थे तो क्या बोल कर रहे थे, अंडर टाइम के लिए तो क्या होता है 0 to 100% होता है। जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनेशन बताया था, मीन्स अ रिस्पांस विच इज रीच टू 10% to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू डिफाइंड बाय द राइज टाइम। ठीक है, तो जैसे ही राइज टाइम डिक्रीज हो गया मीन्स हमारा कहने का मीनिंग क्या, देखो इसको बहुत कोरिलेट करके समझो। राइज टाइम डिक्रीज हो गया मीन्स कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ये रिस्पांस जा रहा था, मीन्स जैसे पहले क्या हो रहा था कि ये था हमारा 10% to 90% पे जा रहा था, अब यहाँ पे सपोज दिस इज T2 - T1 था, और सपोज इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई मीन्स ये और लेस हो गया, और लेस हो गया मीन्स इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ, और लेस होने का मीनिंग कि ये फाइनल वैल्यू को और फास्ट पहुंच गया। देखो यहाँ पे चीजें कंफ्यूजन वाली होती है, मिस राइज टाइम डिक्रीज हो गया कि मिस हमारा सिस्टम और फास्ट रीच कर गया। ठीक है, जैसे मैं कैपेसिटर चार्ज कर रहा था और फास्ट चार्ज हो गया है, फाइनल वैल्यू को रीच कर गया। जैसे 5 वोल्ट से चार्ज करना था, पहले 3 हो गया, 2 हो रहा था, ठीक है 3 था फिर 4 होता, डायरेक्ट मिस और स्पीड लेस ले रहा है चार्ज होने में, मिस राइज टाइम लेस हो रहा है, मिस हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है चार्ज होने में लेस टाइम ले रहा है। वही कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे राइज टाइम डिक्रीज होना, दिस वन इज द डिजायरेबल, दिस वन इज डिजायरेबल एंड सेटल टाइम इज ऑल्सो डिक्रीज, मीन्स सेटल टाइम होने में बहुत लेस टाइम ले रहा है, मीन्स हमारा स्टडी स्टेट बहुत फास्ट आ जा रहा है। यही तो हम चाहते हैं, ट्रांजिएंट टाइम क्या हो मिनिमम हो। अब सी बात यार, कोई फैन स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो हम चाहे नहीं कि अपने मैक्सिमम स्पीड को 1 घंटे बाद पहुंचे या 2 दिन बाद पहुंचे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। हम चाहते हैं कितना अपने मैक्सिमम स्पीड को जो है जितने मिनिमम टाइम में रीच कर जाए। जैसे हम एक क्या पंप की बात करें या मोटर डीसी मोटर की बात करें तो हम चाहते हैं कि एक स्पीड को अपने क्या मैक्सिमम को जितना मिनिमम टाइम में क्या करें रीच कर जाए, मीन्स ट्रांजिएंट टाइम क्या हो मिनिमम हो। ठीक है, जब तक अपने फाइनल वैल्यू को रीच नहीं करता वही टाइम क्या होता है ट्रांजिएंट टाइम होता है। ये सब डिस्कस हो चुका है आई थिंक सो। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो रहा है
इसका कहने का मीनिंग क्या है कि बैंडविथ इंक्रीज हो रहा है। मीन्स बैंडविथ इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है यार, सिंपली समझो ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसमें। बैंडविथ इंक्रीज होना मीन्स पोल्स किस साइड मूव कर रहा है हमारा, पोल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखो मैं अब चीजें कोरिलेट करूंगा थोड़ा सा। बैंडविथ व्हेन पोल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट, लेफ्ट साइड, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड मूव करेगा तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का क्या मीनिंग, मैंने बोला था इस पे रहेगा तो मार्जिन स्टेबल, यहाँ पे रहेगा तो अनस्टेबल। तो जैसे जैसे इस राइट साइड से और दूर होता जाएगा, डिस्टेंस और इंक्रीज होती जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज होती जाएगी। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, एंड टाइम कांस्टेंट भी आल्सो डिक्रीज हो रहा है, और राइज टाइम भी डिक्रीज हो रहा है, और सिस्टम हमारा फास्ट हो रहा है। बट बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो और क्या यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट होगा यार, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ हो जाएगा तो इसमें नॉइज भी ऐड होने लगेंगे, और नॉइज ऐड होंगे तो एसएनआर पे क्या इफेक्ट करेगा। एसएनआर मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नॉइज इज इंक्रीज मीन्स एसएनआर डिक्रीज, मीन्स वी कैन से हियर इफ बैंडविड्थ इज व्हाट, bandwidth is increase then SNR is decrease here. ओके, तो ये कैसे कोरिलेट कर रहा है, ये थोड़ा सा माइंड में कोरिलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। निगेटिव फीडबैक इंप्रूव द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। ओके, आई थिंक यहाँ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो क्या क्या चीजें कोरिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे पोल्स बोलता है, क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे पोल्स हमारा मूव करता है लेफ्ट साइड की तरफ क्या इफेक्ट आता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बैंडविड्थ इंक्रीज होता है, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होता है, और सिस्टम हमारा फास्ट की तरफ मूव होने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। कुछ इसमें एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम कई सारे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पढ़ते हैं कि क्या किस समय कौन सा यूज कर सके हम। पोल यूज करें कि या क्या जीरो ऐड कर दें उसमें। ठीक है, पोल जीरो का आइडिया होगा, इज जी एस इक्वल टू सपोज दिस वन इज 1 प्लस Z1, 1 प्लस S plus Z2 and S plus P1, and this one is S plus P2. This one is what, pole, and this one is zero. मेन जो इफेक्ट होता है इसी का होता है पूरे सिस्टम रिस्पॉन्स पे। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, सपोज एक पोल से बोलो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे S इक्वल टू 1 पे क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। पोल से यहाँ पे लाई करेगा तो अनस्टेबल हो गया। बट देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ओपन लूप हमेशा स्टेबल होता है। ओपन लूप इसलिए स्टेबल होता है कि वो वैरी नहीं करेगा, यहाँ पे कोई पैरामीटर जो आ गया आउटपुट वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। बट क्लोज लूप में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बात हो चुकी है, ऑपरेट कब तक करता रहेगा, इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। ऑपरेटिक कब तक करता रहता है, अंटिल द एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू डिजायर आउटपुट, दैट इज द मेन थिंग इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये ऑपरेट कब तक करता रहेगा, व्हेन अंटिल द एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू डिजायर आउटपुट। कभी कभी अनस्टेबिलिटी की तरफ भी मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, 9/s-1 अपॉन प्लस 9, that is 9/s plus 8 here. Then what is the pole, that is -8। तो पोल्स कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे -8 पे आ गया। पहले कहाँ पे लाई करा था 1 पे, कहाँ पे आ गया। निगेटिव फीडबैक यूज करने से, यूजिंग द निगेटिव फीडबैक दिस पोल्स इज मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड, तो और स्टेबल इंक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेगेटिव फीडबैक इंप्रूव द स्टेबिलिटी इफ प्रॉपरली अप्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ऑलवेज, यहाँ पे ध्यान रखना। क्लियर, प्रॉपरली अप्लाई होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज हमेशा नहीं होगा। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लूँ, क्या 2/s-9, अगेन सॉल्व करो इसको। क्लोज लूप क्या हो जाएगा, 2/s-9 प्लस 2 क्या हो गया, 2/s-7। क्या ये स्टेबल हो गया, नहीं हो गया ना, अभी तो क्या है, अनस्टेबल है। तो प्रॉपरली अप्लाइड होना चाहिए, इसकी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आइडिया होना चाहिए। ये सब देखो एग्जाम में चीजें एक आईएएस में पूछा जा चुका है, और आईएएस में ही पूछा जा सकता है, गेट में भी आ सकता है, बट गेट में एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। वो पूछना कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी कंडीशन के लिए तैयार रहना। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, यार एकदम पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी कहानी नहीं चल रही है। ठीक है, जो पॉइंट आता है उसी पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है यहाँ पे, बट नॉट ऑलवेज। ओके, लेट्स कम टू द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, मीन्स
सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर क्या क्या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इफेक्ट कर सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं सपोज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मैं कोरिलेट करूँ तो ये R1 इंटू जी हो जाएगा, सपोज R1 इंटू G1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है दोनों, दिस वन इज RG1 प्लस D, अगेन दिस वन इज मल्टीप्लाई विथ G2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी हियर। मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ RG1 प्लस D एंड G2, ओके। सपोज इफ आई राइट हियर RG1 G2 प्लस D G2, क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे जो आउटपुट क्या डिस्टरबेंस का इफेक्ट क्या है, अगर सपोज डिस्टरबेंस इंक्रीज होने लगा तो क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसमें G1 G2 भी है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे इंक्रीज होगा इस पे इफेक्ट कर जाएगा, ये भी इंक्रीज होने लगेगा आउटपुट। मीन्स ओपन लूप में क्या हो रहा है एक्चुअली, नॉइज का इफेक्ट क्या हो रहा है, जैसे अगर सिग्नल हो रही है तो नॉइज क्या होता है, नॉइज मीन्स व्हाट, डिस्टर्बेंस मीन्स नॉइज मीन्स दिस इज द अनवांटेड सिग्नल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे अनवांटेड सिग्नल जिसके रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेक्चर ले रहा हूँ, इसमें अनवांटेड सिग्नल कुछ क्या हो गया, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अनवांटेड सिग्नल। तो हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है सिग्नल जो भी मैं बोल रहा हूँ वो क्या इफेक्ट उसका लेस हो जाएगा। मीन्स डिस्टर्बेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वॉइस लेस सुनाई देगी, मिनिमम सुनाई देगी, तो हम तो ये चाहेंगे नहीं, हमेशा डिस्टर्बेंस का इफेक्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा क्लोज लूप में देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आता है, क्लोज लूप की बात करते हैं, ठीक है। क्लोज लूप की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, यहाँ पे दो इनपुट है, एक इनपुट है, तब कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि सर इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। मैंने बता चुका हूँ कि कैसे जो है कई सारे इनपुट होंगे तो उसका भी ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। हमेशा हम अप्लाई करेंगे कौन सा, सिग्नल फ्लो ग्राफ हियर, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो थर्ड लेक्चर जाकर देख लो कंट्रोल सिस्टम का, उसमें सब कुछ बेस्ट अप्रोच डिस्कस किया मैंने, ठीक है। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द आउटपुट ड्यू टू द इनपुट D, ठीक है, व्हाट वी हैव टू टेक R इक्वल टू 0। सपोज हम क्या लेते थे उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम में, वी अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम मीन्स व्हेन वन और मोर इंडिपेंडेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सर्किट, देन by using the superposition theorem we have to activate only one element and remaining should be deactivate here, okay। तो मैं इसकी वजह से देख रहा हूं तो इसको इफेक्ट कर दिया, 0 कर दिया मैंने, तो यहां पे देख रहा हूं कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन P1 फॉरवर्ड पाथ गेन दैट इज G1 G2 एंड नेक्स्ट del 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अ लूप व्हिच इज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ 0 दैट इज 1 हियर। नेक्स्ट व्हाट अबाउट द del 1 माइनस व्हाट लूप गेन, इनविजुअल लूप गेन, तो एक ही लूप बन रहा है इसमें, व्हाट G1 G2 माइनस ऑफ G1 G2 S2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस G1 G2 S2। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर का टर्म है पोल्स, मीन्स क्लोज लूप पोल्स इज ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट हियर। ये इनपुट ले लो या कोई इनपुट ले लो, हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज दिस वन इज डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम पैरामीटर। और वी कैन से थोड़ा सा और एक्सटेंड पे जाके हम क्या बोल सकते हैं कि लूप इज ओपन लूप इज व्हाट, दिस इज लूप इज इंडिपेंडेंट, लूप गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट हियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे टर्म लूप ही तो होते हैं इसमें, सम ऑफ इनविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप ही तो होते हैं वो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। सब प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, इतना इसमें एक्सप्लेन नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट दिस इज del एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज C by D इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 S2, ओके। व्हाट अबाउट द C by R, C by R equals to what, this one is the forward path that is what G1 G2 upon 1 plus G1 G2 S2, सेम आ रहा है ना, ये भी सेम आएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आउटपुट की, डायरेक्ट तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो G2 D अपॉन 1 प्लस G1 G2 S2। नेक्स्ट G1 G2 what R upon 1 plus G1 G2 S2। Suppose if I take here what, this value is much more greater than 1, then this one is replaced by what, C is approximated as what, C is approximated as, इसकी वैल्यू को 1 से बहुत ज्यादा, इसकी वैल्यू लार्ज है ना, G1 G2 की लार्ज वैल्यू होती है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दें G1 G2 S2 से, तो G2 कैंसिल हो जाएगा, तो D अपॉन व्हाट G1 S2 प्लस यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन व्हाट
S2 here. क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट हमारा, देखो उसमें डायरेक्टली था ओपन लूप में, बट यहाँ क्लोज लूप में क्या रहा है, सपोज इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, हम कौन सा यूज करें वो डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हम स्टडी करेंगे उसकी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे के प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज कर लूँ और के रहता है, के की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे, गेन की वैल्यू, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट इसका वैल्यू क्या होने लगेगा, और डिक्रीज होने लगेगा 1 से, और 1 से डिक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स इन क्लोज लूप टर्म्स ऑफ फंक्शन a closed loop system disturbance effect is minimum, a noise effect is minimum, then SNR is increase। और यही तो हम चाहते हैं रिसीवर पे, SNR जितना इंक्रीज होगा हमारे वॉइस और क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रिपीटर कई सारे यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं वो सब, SNR को इंक्रीज करने के लिए, मैच फिल्टर सब कुछ पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम में। अभी कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बट यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ अभी, मैं एक कंट्रोल सिस्टम यही बता सकता हूँ कि जैसे जैसे गेन जीवन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स वी कैन से डिस्टर्बेंस इफेक्ट इज मिनिमम इन क्लोज लूप सिस्टम हियर। ओके, okay, this is all about your important lecture, that is conceptual lecture. Okay, thank you so much, we will meet in the next lecture.